Hello my dear brothers and sisters, my friends and family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, परिवारों, I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का अभिवादन करता हूँ। I believe and I trust in God that you all are well and safe at home. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी घर पर अच्छे और सुरक्षित हैं। Because this corona effect is still everywhere in the world. क्योंकि अभी भी कोरोना का प्रभाव हर जगह है। And we pray that the Lord will keep you safe. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। And we pray that God will deliver us from this corona issue very soon. और परमेश्वर हमें शीघ्र ही इस स्थिति से बाहर निकाले। My beloved, I was also thinking about this corona when I was waiting on the Lord, praying about this issue, asking God, Lord, what is happening? Why is this happening? मेरे प्यारों, मैं भी बहुत सोच रहा था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं सोच रहा था कि क्यों इस स्थिति का आगमन हुआ है, क्यों ये ऐसी स्थिति हमारे चारों ओर फैली हुई है। Maybe I have already spoken about this, but today I want to speak to you again regarding this. मैं आपसे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ। When I was waiting on the Lord, Holy Spirit was moving in my heart about this. जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात कही। Holy Spirit was moving and he in my heart and telling me about the world, especially the children of God. I'm talking about the Christians, the children of God. They have forgotten about the Father in heaven, the Creator God, Jehovah God. पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बता रहा था कि इस खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मसीह में हैं, जो मसीह के बच्चे हैं, इस देश में, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो परमेश्वर को, जो उसके रचयिता हैं, सृष्टिकार हैं, यहोवा को भूल गए हैं। My beloved, we have so many millions and billions of Christians in the world and churches in the world. मेरे प्यारों, इस संसार में कितने ही लाखों करोड़ों कलीसिया हैं। And most of the churches, majority and most of the churches, they will have minimum a cross like this. और अधिकतर कलीसिया में आप देखते हैं कि इस तरह का क्रूस हमें मिलेगा। And many churches, they have the sculpture of Jesus Christ or his image or a picture of Jesus Christ. और काफ़ी कलीसिया हैं जहाँ पर हम यीशु मसीह की मूर्ति देखते हैं, उनका एक चित्र देखते हैं, या किसी भी प्रकार की एक कल्पना देखते हैं। And even the Christian homes, they will also have the picture of Jesus Christ. They even worship the picture of Jesus Christ. और काफ़ी ऐसे घर भी हैं जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह की मूर्ति लगाकर या उनके चित्र को लगाकर उनकी आराधना की जाती है। But my beloved, nobody remembers about the Father who has sent his Son Jesus Christ. लेकिन कोई भी ये नहीं जानता वो पिता कौन है जिसने अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेजा था। Don't think I am a Jehovah Witness because I talk too much about the Father. No, I am not. आप ये मत सोचिए कि मैं जेहोवा विटनेस से हूँ क्योंकि मैं पिता के बारे में काफ़ी बात कर रहा हूँ। We believe in the Trinity of the Father, Son and the Holy Spirit. हम उस त्रियोग परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। My beloved, the whole world remembered our Lord Jesus Christ. पूरी दुनिया परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करती है, उसे जानती है। Because we celebrate the birth of Jesus Christ, Christmas. क्योंकि हम उसका जन्मदिन मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। And we all celebrate his resurrection day. हम उसका पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं ईस्टर के रूप में। But there is no such thing as we celebrate the Father in the whole year. लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा दिन नहीं है कि हम परमेश्वर पिता को हम मनाते हैं। So I believe that most of the people in the world, they have forgotten about the Creator, the Jehovah God, the Father in heaven. तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर इस दुनिया में लोग हमारे सृष्टिकर्ता परम प्रधान पिता को भूल गए हैं। Amen. आमीन। My beloved, if you read the book of Judges in the Old Testament, अगर आप पवित्र शास्त्र में न्याय जो अध्याय है उसको पढ़ें, the content is all about every time the Israelites will forget our Father God and the Lord will punish them. Something will come to them. इस पूरे अध्याय में आप देखते हैं कि जब भी इजरायली पिता को भूले हैं, यहोवा को भूले हैं, वो उनको दंडित करते हैं। Something evil will follow them or a famine will come.
किसी भी प्रकार का उनके साथ बुरा होता है, अकाल पड़ता है, and then the Lord will he will send a savior to save them, and they will come back to the Father. और परमेश्वर यहोवा उसको बचाने के लिए किसी दूत को भेजता है और वो फिर वापस आते हैं। So when I was praying about this, and when Holy Spirit was moving in my heart, जब मैं इसके बारे में प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा मुझसे ये बोल रहा था, I was thinking, why not Corona? Why not God using this Corona to remind His children about the Creator Father God? तो मेरे दिल में आया, क्यों ना कोरोना उस स्थिति का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है कि वो अपने सृष्टिकार को याद दिला सके। Because we only use the name of the Father, Son and Holy Spirit when we bless somebody. क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम का इस्तेमाल करते We हैं। bless somebody in the name of the Father, Son and Holy Spirit. जब हम किसी को आशीष देते हैं तो हम पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं। When we finish the prayer, we use the name Father, Son and Holy Spirit. जब हम प्रार्थना समाप्त करते हैं तो पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम का इस्तेमाल करते हैं। When we wish somebody, we use the Father, Son and Holy Spirit. जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तब हम इन त्रियोग परमेश्वर का नाम लेते हैं। But after that, we forget the Father and we also forget Holy Spirit. We only hold on to Jesus Christ. और उसके बाद हम पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को याद रखते हैं। In the following program, I will speak about the Holy Spirit. इसके बाकी भाग में मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में भी बताऊंगा। In John chapter 4, we read about Jesus Christ meeting the Samaritan woman. यूहन्ना अध्याय 4 में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु जब सामरी स्त्री से मिलने गए, Amen. And he tells her that neither in this mountain or nor in Jerusalem, but there is a time coming that the whole world, the people will worship the Father in heaven from everywhere. अध्याय 4 में जब प्रभु यीशु सामरी स्त्री से मिलते हैं तब वो बताते हैं कि किस तरह ये समय आता है जब ना पहाड़ पर और ना यरूशलेम में पिता की आराधना होगी बल्कि हर जगह होगी। And after that, you know what the Lord Jesus spoke about worship. और उसके बाद आप जानते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु ने आराधना के बारे में My बताया। beloved, I want to remind you again why Jesus Christ came to this world. मेरे प्यारों, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। See, we all know, as it's said in Luke chapter 19 verse 10, that the Son of Man came to this earth to seek and save the lost. कि हम सभी जानते हैं कि लूका 19 अध्याय में 10वां वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर आया, कि दुनिया में आया कि जो उसे खोजने वाले हैं उसको खोजकर उसको बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए आया। But there is something that very important that we forget, why Jesus came to this earth. It's not only for seeking and saving the lost. लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम सब भूल गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ खोजने के लिए और बचाने के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह, बाकी दूसरे वजह के लिए भी है। My beloved, the second very important reason that Jesus Christ came, the first reason maybe he came to deliver us from sin or to forgive us. मेरे प्यारों, एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि क्यों परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर दुनिया में आया। पहली बात यह है कि वो आया इस दुनिया में हमें उद्धार देने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। But second very important thing is he came to reconcile. It's very important that the Christians must remember this. Jesus Christ came to reconcile us. लेकिन एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सभी को मेल मिलाप के लिए आया। Reconciliation is bringing back the broken relationship. मेल मिलाप का क्या मतलब है कि जो टूटा हुआ है उन रिश्तों को, दो रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ने के लिए। See, my beloved, if you read Isaiah chapter 49 verse 1 and 2, मेरे प्यारों, अगर आप यशाया अध्याय 49 में पढ़ते हैं वचन 1 और 2 में, the Bible very clearly says why there is a gap between our Father God and the people, the Israelites. इस वचन में साफ दिखता है कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यहोवा में और लोगों के बीच में एक अंतर है, एक दूरी है। The Bible says that his hand is not too short that he cannot save you. वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको बचा नहीं सकता, Or his ears are deaf that he cannot hear you.
और उसके कान सुन नहीं सकते कि वो आपकी बातों को नहीं सुन सकता। It's our sins that has created a big gap between our Heavenly Father and ourselves. ये हमारे पाप हैं, हमारी कमियां हैं जो हमारे और प्रभु यहोवा के बीच में दूरी पैदा करती है। That gap Jesus Christ came to reconcile. He wanted to bring that back. और वही दूरी जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह हम उस दूरी को मिटाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए आया। He wanted to close that gap by giving himself. वो इस दूरी को मिटाकर उन दोनों को मिलाने के लिए आया। You read Ephesians chapter 2, the Bible talks about this from verse 13 to 18. अगर आप इफिसियों अध्याय 2 में पढ़ें, जो वचन 13वें से लेकर 19 तक है। Verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by blood of Jesus Christ. पर अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Because my beloved, prior to the new covenant, Gentiles were excluded from the commonwealth of the Israelites. क्योंकि मेरे प्यारों, नए नियम से पहले जितने भी गैर यहूदी थे वो उन नए वाचा से दूर कर दिए गए थे। We were foreigners to the covenants of God. हम लोग जो विदेशी हैं, जो गैर यहूदी हैं, परमेश्वर की वाचा से अलग हैं। We were foreigners to the promises of God. हम परमेश्वर की वाचाओं से, उनके अधिकार से दूर हैं, विदेशी हैं। There was no hope in our life. हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं है। We never had the ability to come near God and to reconcile ourselves with the Heavenly Father. क्योंकि हमारे में कोई भी योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर यहोवा के निकट भी आ सके और उनके साथ मेल मिलाप कर सके। And this is the important word, 16, and that he might reconcile them both to God. Who's God here? Our Heavenly Father, in one body through the cross, thereby putting death the enmity. और एक महत्वपूर्ण वचन, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर यहोवा है। And verse 18 says, for through him, through Jesus Christ, we both have access by one Spirit to the Father. और वचन 18वां कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। My beloved, if you look at the cross, you can see these two shapes, the vertical and the horizontal. मेरे प्यारों, अगर आप क्रूस का आकार देखें तो आप देख सकते हैं कि एक लंब क्रूस में एक लंब लाइन होती है और एक क्षैतिज होती है। The vertical line talks about our reconciliation between Heavenly Father and ourselves. जो लंबित जो लाइन है वो ये दर्शाती है कि ये हमारे और परमेश्वर यहोवा के बीच का मेल मिलाप है। And the horizontal line talks about the Jewish people and the non-Jewish people coming together as one new man, as the Bible says. और जो क्षैतिज लाइन है वो ये दर्शाती है कि यहूदी और गैर यहूदी के मेल मिलाप के बीच में एक संबंध है, जिस प्रकार से जो नए नियम के अनुसार, नए वाचा के अनुसार जो पवित्र शास्त्र कहता है, दर्शाता है। So you know why Jesus Christ came to this earth. तो आप जानते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। Number one, he came to forgive our sins, to seek and save the lost. सबसे पहली बात कि परमेश्वर यीशु मसीह संसार में हमारे पापों को क्षमा करने, हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने आया। And secondly, very important, he came for reconciliation. और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो हमारे मेल मिलाप के लिए आया। That's why Jesus Christ is speaking to the Samaritan woman that there is an hour coming where Father will be worshipped from everywhere. और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात करता है, वो बताता है आराधना के बारे में कि वो समय आ रहा है जब ना तो पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना की जाएगी, हर जगह से पिता परमेश्वर की आराधना की जाएगी। Hallelujah. Hallelujah. My beloved, I believe in my heart, I feel in my heart, or I can say I'm moved in Holy Spirit that maybe our Heavenly Father is using this corona issue. मेरे प्यारों, मैं हृदय में महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना स्थिति का परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है to remind His children about the world forgetting the Creator.
कि अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए कि जो ये दुनिया है परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को भूल चुकी है। My beloved, the Bible talks about the church in Matthew chapter 16 verse 18. मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र मत्ती अध्याय 16 वचन 18 कहता है, And the Lord says, I will build my church on this rock, और प्रभु यीशु कहता है कि मैं इस कलीसिया को इस पत्थर पर बनाऊंगा, and even the gates of Hades will not prevail it. कि जो अधोलोक का जो फाटक होगा वो भी उस पर प्रबल ना होगा। If that is the case, how every church in the world is closed because of Corona today? तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है कि आज इस दुनिया के हर एक कलीसिया आज बंद हो चुके हैं? Is Corona powerful than church? क्या कोरोना कलीसिया से ज़्यादा शक्तिशाली है? Or is Corona powerful than God Himself? और कोरोना जो है खुद परमेश्वर से शक्तिशाली है? No. नहीं। I believe the Lord is using this Corona effects मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस कोरोना प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है to close the churches, कलीसिया को बंद करने के लिए, sending His children back home, अपने बच्चों को वापस घर भेजने के लिए, and to start their churches in their home. कि अपने घर में ही कलीसिया शुरू करने के I have लिए। already spoke about this to you. मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, Because Christians are becoming double-headed now. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे आज दोहरे मन में हैं। They come to church, they worship the Father in spirit and in truth in the church. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा में, सच्चाई में वो प्रार्थना करते हैं। My beloved, when they get back home, लेकिन जब वो वापस घर जाते हैं, they don't read Bible. वो पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, There is no consistent prayer life. उनकी प्रार्थना जीवन लगातार नहीं चलती है। There is no time to seek His face at home. हमारे पास समय नहीं है कि हम उसके लिए उसके साथ समय बिता सकें। My beloved, I believe today in many places, not all the churches, in many places, the world has entered the church. कि मैं विश्वास करता हूँ सभी कलीसिया में नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर संसार जो है कलीसिया में प्रवेशित हो चुका है। When I talk about world, I'm talking about the carnality. अगर मैं संसार की बात करता हूँ तो कलीसिया के अंदर पाप प्रवेशित कर चुका है, हमारा सांसारिक मन प्रवेशित कर चुका है। So maybe I think that the Lord wants to clean the churches today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर कलीसिया को साफ करना चाहता है। So the churches are locked down because God is cleaning the church. तो इसीलिए आज कलीसिया बंद है, क्योंकि आज परमेश्वर कलीसिया को साफ करना चाहता है। Amen. आमीन। And He is sending His children back to His church, to their house. और परमेश्वर अपने बच्चों को वापस उनके घर भेज रहा है। Because in many families, only the mother comes to church, but the children sleep in the house. क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं, घर हैं जहाँ सिर्फ माताएं कलीसिया आती हैं, बच्चे घर पर सोते हैं। Or the parents visit the churches, but the children they stay back home because they want to prepare for their examinations. और कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर सिर्फ माता पिता कलीसिया आते हैं, बच्चे घर पर जो है पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। Or maybe the children they went so late after coming back from a late night movie, so they're not able to get up in the morning. They don't come to church. काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बहुत देरी रात में घर आते हैं, मूवी देखकर आते हैं, उनके पास समय नहीं है, देर से जगते हैं और वो कलीसिया नहीं आते हैं। So there is no discipline, spiritual discipline at home, but they come to church and worship God without families. आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ आत्मिक अनुशासन नहीं है और वो लोग कलीसिया आते हैं और वहाँ आराधना करते हैं। It's because the world has, and especially the children of God, has forgotten about the Heavenly Father. इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज कलीसिया में संसार प्रवेशित कर चुका है। The Bible calls Him the jealous God. क्योंकि आज लोग जो हैं परमेश्वर यहोवा का भूल चुके हैं, जो परमेश्वर एक जलनशील परमेश्वर है। And the children of God, the Christians, they have lost their fear upon the jealous God. परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर यहोवा के प्रति अपना भय खो चुके हैं, जो एक जलनशील परमेश्वर है। My beloved, Jesus Christ is full of love and grace. मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिरूप है प्रेम का। But our Heavenly Father is fire. लेकिन हमारा स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर एक अग्नि है। Fire never waits for anyone. अग्नि किसी का इंतजार नहीं करती। And fire is no cool. और अग्नि ठंडी नहीं होती। Hallelujah. Hallelujah. So my beloved, I think the Lord is sending the Christians back to their houses because He wants to reconcile the families together. They have to start the prayer. Maybe they lost their family prayer. They have lost their family fellowship.
So God is telling them, first do that at home and then come to my altar and then you worship me. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर सभी अपने बच्चों को घर भेज रहा है कि सबसे पहले अपने घर से वो मेल मिलाप शुरू करें। आप अपने परिवारों में, अपने परिवारों के बीच में मेल मिलाप करें और उसके बाद कलीसिया आएं। Amen. आमीन। I have heard some sisters telling me about their husband, Pastor, he is coming to church but at home he doesn't come and sit with me for prayer, family prayer. मेरे पास कई बहनें आती हैं जो कहती हैं कि पास्टर, मेरे पति हैं जो कलीसिया आते हैं लेकिन घर में जो है उनके पास समय नहीं होता है, हमारे साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं। So God is asking us today, when you don't pray at home but you are coming to my place in my church or in my altar you are praying, what is the use? तो परमेश्वर आज पूछ रहा है कि जब तुम अपने घर में प्रार्थना नहीं करते हो, मेरे साथ समय नहीं बिताते हो, तो कलीसिया आने का क्या ज़रूरत है? And Father is Spirit, He is everywhere. लेकिन परमेश्वर एक आत्मा है जो हर जगह है। So the fellowship that you have with our Father God in the church, तो जिस तरह से कलीसिया में परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, you must have that at your home first. सो सबसे पहले आपका वो रिश्ता आपके खुद के घर में होना चाहिए। Remember this, Christians, your first worship, your first prayer, your first ministry starts in your family. मेरे प्यारों, आप ये सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे घर में, हमारे परिवार से ही सबसे पहली आराधना, सबसे पहली प्रार्थना करना और मिनिस्ट्री करना हमारे खुद के घर से शुरू होता है। When you don't pray at home, when you don't have family prayer at home, when you don't read the word of God, when there is no fellowship at home, there is no use of coming to church and doing the same. अगर आपके घर में आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपके पास पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, आप वहाँ बैठ के आराधना नहीं करते हो, परमेश्वर को समय नहीं देते हो, तो कलीसिया आने का कोई उपयोग नहीं है। So I feel in my heart that the Lord has sent the Christians back home to set the houses, the families, the homes right first. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर इस स्थिति का इस्तेमाल कर रहा है कि वो अपने बच्चों को वापस भेज रहा है अपने घर में कि पहले अपने घर की स्थिति सही करो। Because at home we live our life however we want to live. क्योंकि हम अपने घर में हम जिस तरह से जीना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से जीते हैं। But when we allow so many things that is evil to the sight of God into our homes. हम अपने घर में ऐसी चीज़ों को बुलाते हैं जो परमेश्वर की आंखों में अप्रिय होती हैं। Through songs, गानों के जरिए, गीतों के जरिए, through television programs or some movies, टीवी में प्रोग्रामों के जरिए, मूवियों के जरिए, through our lifestyle at home. हमारे जीवन, हमारे घर में हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व के जरिए। God wants us to settle that away. सबसे पहले परमेश्वर हमें उसे सही करने को बोल He रहा है। wants to come to your house. वो तुम्हारे घर को आना चाहता है। He wants to be the father of your house first. वो तुम्हारे घर का सबसे पहले पिता होना चाहता He है। wants to be the master and the protector of your family first. वो तुम्हारे घर का मुखिया होना चाहता है, हमारे परिवार को बचाना So चाहता He है। wants you to do those things that you do in the church. You have to do that in the family first. तो सबसे पहले जो तुम काम कलीसिया में करते हो, जिस बर्ताव को कलीसिया में करते हो, वो अपने घर से शुरू कीजिए। And I believe this 2020, that time has come to worship the Father from everywhere in spirit and in truth. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष 2020 से परमेश्वर की आराधना आप सच्चाई में और आत्मा में करेंगे। Jesus prophesied about this 2000 years back, more than 2000 years back. प्रभु यीशु मसीह ने इसे 2000 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की थी। He said the time is coming. उसने कहा था कि वो समय आ रहा है। And I say the time has come now. और मैं कहता हूँ कि वो समय आ चुका है, अभी आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Please reconcile yourself back to the Father in heaven. कि कृपया अपने आप को पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कीजिए। If you want to know about Him, अगर आप उसको जानना चाहते हैं, read the Old Testament. आप पुराना नियम पढ़ें। If you want to know about Jesus Christ, अगर आप यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, read the New Testament. नया नियम पढ़िए। If you want to know about Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते read हैं, the whole Bible. पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ें, You will know about Him. आप उसके बारे में जानेंगे। Pray to God, Lord, show yourself to me. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने आप को दिखाओ। He is not mute.
that he cannot talk to you. वो गूंगा नहीं है जो आपसे बात ना कर He is सके। a living God. वो जीवित परमेश्वर है। The same God who speaks to me. वो खुद परमेश्वर जो मुझसे बात करता है। The same God who speaks to us. वो परमेश्वर जो हम सब से बात करता I है। challenge you, if you call upon his name, if you spend time with him alone, you will hear his voice. Every question that you ask him, he will answer you. और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आप अपने अकेला समय उसके साथ बिताएंगे, उससे पूछेंगे तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे। The hour has come वो समय आ चुका है to worship the Father. परमेश्वर की आराधना करने Not का। only Jesus Christ, सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं, the Father in heaven. पिता जो स्वर्ग में स्थित है, Because he is the one who sent his only begotten Son Jesus Christ. क्योंकि वही एक पिता है जिसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को भेजा If था। our heavenly Father never sent Jesus Christ wouldn't have come. अगर स्वर्गीय स्थित परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा होता तो वो आज हमारे साथ ना होता। Even though our heavenly Father is a jealous God, he is fire, but still you can see how much he loves you and me by sending his Son to us. पिता जो इतना जलनशील प्रवृत्ति का है, फिर भी अपने प्रेम में उसने हम सब के लिए अपने एकमात्र पुत्र को दिया। His voice may be like thunder, उसकी आवाज़ जो है बिजली के कड़कने जैसी है, but he is so gracious. लेकिन वो बहुत करुणामय है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्यारों, go back to your house. अपने घर वापस जाए, Reconcile yourself in your family. अपने परिवार के साथ मेल मिलाप करें, And that you bring your family and bring that reconciliation between your family and our heavenly Father. अपने परिवार को साथ लाइए और परिवार के साथ स्वर्ग में स्थित परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप When all कीजिए। this lockdown and quarantines come to end, जब ये क्वारंटाइन का समय, ये लॉकडाउन का समय अंत होगा and when the churches open, और जब कलीसिया खुलेंगे, I want you all to go to your churches as new creation. और जब आप अपने कलीसिया में जाएं तो एक नए मनुष्यत्व के रूप में And जाएं। when you worship the Father, when you worship our Lord in your church, और जब अपने कलीसिया में आप परमेश्वर की आराधना करें, there must be a tremendous change in your worship. और आपकी आराधना में एक बहुत ही भव्य बदलाव होना चाहिए, And you will receive more blessings. और आप अधिक अधिक आशीष May the प्राप्त Lord करेंगे। bless you, परमेश्वर आपको आशीष करे and may the Lord keep you safe. और आपको सुरक्षित रखे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Amen. आमीन।